بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ میرا خیال ہے کہ انصاف جو ہیں پاکستان میں جو دوربین پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اگر انصاف ہوتا تو عمران خان جیل میں پڑا ہوتا۔ کیا کیس ہیں، فالتو لغو بے بنیاد کیس، سائفر، توشہ خانہ، ایک گڑی کے کیس ہیں۔ اور کیس کیا تھا کہ جی آپ نے رقم لکھی ہے جو گڑی بیچنے سے آپ نے حاصل کی، لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ گڑی کے فروغ سے میں نے حاصل کی۔ یہ جرم ہے کوئی قانون میں کہ اس میں کرمنالٹی کیا ہے۔ پھر سائفر کیس میں کہ جی آپ نے عوام کو کہا کہ جی ڈونلڈ لو نے یہ میسج دیا ہے، تو اس میں ملک کی کون سی سلامتی کمپرومائز ہوئی؟ پھر اس میں جو اور کیسز ہیں کہ جی آپ نے 9 مئی کو جب آپ گرفتار ہو گئے تو پھر آپ کے پیچھے جو یہ جلوس نکلے اور جلاؤ گرا ہوا تو آپ اس کے بھی ملزم ہیں۔ یہ کیسز ہے، کبھی اس طرح کی کیسز آپ لوگوں نے سنے ہیں؟ ایک بھی شہادت ان کو نہیں ملی۔ بے تحاشا انہوں نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی میں کسی کو توڑ کے اس کا 164 کرایا جائے کہ وہ خان کے خلاف گواہی دے کہ جی 8، 7، 6 مئی کو یہ میٹنگ ہوئی تھی کہ خان نے یہ کہا تھا کہ جی اگر میں گرفتار ہوا تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے۔ مذاق ہو رہا ہے پوری قوم کے ساتھ، آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہے۔ اور اس زیادتی کی کلمینیشن آپ نے عباد فاروق کے بیٹے کی شکل میں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ظلم اتنا بڑھ چکا ہے، اور ناانصافی جو ہیں اس کے جو بادل ہیں، اتنی کالی گٹھائیں جو ہیں اس ملک پہ آئی ہوئی ہیں کہ جہاں پہ ایک چھوٹا بچہ سسکتا ہوا مرتا ہے، اور یہ لوگ نہیں ڈر رہے ہیں کہ خدا کا قہر نازل ہوگا ان تمام لوگوں پہ جو اس ملک میں آج ناانصافی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ نیشنل میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف کے استقبال کا جو اعلان کیا تھا اس کو ترک کر دیا ہے، اور بیان یہ آیا ہے کہ جی عوام کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں۔ 4 سال کے بعد آ رہے تھے، اگر 4 سال کے بعد ایک دفعہ تکلیف دے دیتے تو اتنا برا نہ ہوتا، اور تھوڑی سی تکلیف عوام اٹھا لیتے، لیکن تکلیف اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی تکلیف اٹھا نہیں رہا ہے ان کو ریسیو کرنے کے لیے، کیونکہ خفت اٹھانی تھی، شرمندگی اٹھانی تھی، تو اس وجہ سے اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ ریزن ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا سب سے جو مقبول لیڈر ہیں اور جو مقبول ترین پارٹی کا جو لیڈر ہیں، ان کو بے بنیاد لغو کیسز میں اٹک جیل کے ایک سیل میں ڈالا گیا ہے۔ نواز شریف کی یہ شرط تھی کہ میں تب پاکستان آؤں گا جب عمران خان کو جو ہے نظر بند کیا جائے گا، اور لگتا یہ ہے کہ انہی کے پلاننگ کے تحت تمام کام ہو رہے ہیں۔ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ایک جو مجرم اشتہاری ہے اور جو اس ہائی کورٹ کے فائلوں میں جو ہیں پروکلیمڈ افینڈر ہیں، وہ اگر پاکستان آ رہا ہے تو سب سے پہلے تو قانون جو ہے وہ حرکت میں آتا، اور جہاز سے اترتے ہی اس وارنٹ کی تکمیل ہوتی۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس قانون کے تحت وہ آزاد پھرے گا۔ ایسا کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں کہ بغیر کسی ضمانت کے وہ آئے اور جلسے کرنا شروع کر دے۔ اور ضمانت اس کیس میں ضمانت تب ہوتی ہے جب کوئی پرچہ ہو اور آپ پہلی دفعہ آ رہے ہو۔ یہ تو کنوکٹ ہیں 426 کے تحت، اپنے بانڈ کے شرائط کو جو ہیں یہ وائلیٹ کر چکا ہے، تو لہٰذا یہ شخص جو ہیں کسی قانون کے تحت آزاد نہیں پھر سکتا ہے، اور اگر یہ آزاد پھرتا ہے تو پھر قانون کا مذاق اڑایا جائے گا، عدالتی احکامات کی بے توقیری ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ پھر فرض بنتا ہے بالخصوص اس عدالت عالیہ کا کہ وہ اگر ان کے نوٹس میں ہیں کہ ان کا جو مجرم اشتہاری ہیں وہ پاکستان آیا ہوا ہے اور آزاد پھر رہا ہے، اور حکومت وقت ان کو گرفتار نہیں کر رہی ہے، تو پھر عدالت اپنے احکامات پہ عمل درآمد کرائے۔ سر راجہ ریاض کے بارے سے بھی بتائیے گا، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور کہا کہ ان کی جانب سے کہ جب وہ بھی لندن سے واپس آ رہے ہیں
लोग इस्तकबाल के लिए निकले हैं, लगता है उनको कि वो भी पॉपुलर है? देखिए जी, ये जो तरतीब पेश की जा रही है पाकिस्तानी सियासत की नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए, ये इलेक्टेबल्स के लिए एक प्रोग्राम है कि वो ये देख लें कि कितनी आओ भगत होगी इनकी, किस साइड पे जो है एस्टेब्लिशमेंट कड़ी है और किस साइड पे जो है इलेक्टेबल्स को जाना चाहिए। तो मलिक रियाज या इन जैसे और लोग जो बयानात दे रहे हैं वो बेसिकली ये बयान दे रहे हैं कि चूँकि हमारे पुश्त पे मजबूत सहारे हैं तो लिहाजा, और चूँकि पाकिस्तान में इन सहारों के बग़ैर हुकूमत नहीं बनाई जा सकती है, तो इलेक्टेबल्स के लिए एक जाल बिछाया जा रहा है या उनको सबज बाग दिखाए जा रहे हैं कि जी आपने अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है ज्वाइन करना है। यहाँ पे मैं एक अर्ज़ कर दूँ कि बहुत सारे इलेक्टेबल और लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की कब की हमें अप्रोच कर चुके हैं, और ये जो बेबुनियाद केसेस हैं जिनमें इमरान खान साहब को जेल में डाला गया है, और न कि सिर्फ डाला गया है बल्कि आप देख रहे हैं आज भी अगर ये अटक जेल में मौजूद है तो किसी कानून के तहत नहीं है, और ऐसे इस अमल को हमने चैलेंज किया हुआ है जो 15 दिन से यहाँ पे फैसला महफूज है। यानी एक छोटा सा मुकदमा जिसमें ये अदालत ने पूछना था कि जी कोई कानून की किसी शिक के तहत ये अडियाला जेल में क्यों नहीं है और अटक जेल में क्यों है, वो फैसला महफूज है। दिन पे दिन, आयाम पे आयाम, हफ्तों पे हफ्ते ज़ाय किए जा रहे हैं ताकि फैसला क्यों नहीं आ रहा है। अगर फैसला हमारे खिलाफ आता तो शायद उसी दिन खारिज हो जाता। अब इसकी कोई तरतीब ही नहीं है कि इस फेल को जस्टिफाई किस तरह किया जाए। तो लिहाजा इस फैसले की ताख़ीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं सफ़र कर रहे हैं। ये फैसला जो है, हमारी इस्तदा है कि जल्द अज जल्द जो है ये फैसला सुनाया जाए। शेख रशीद के हवाले से बता दें, कोई भी इदारा ऑन नहीं कर रहा कि किसने उठाया उनको, क्या लगता है आपको? देखिए, उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी, शेख रशीद, खुरम अफरीदी जो शहरियार अफरीदी का भाई है, और बहुत सारे लोग जो हैं कैपिटल सिटीज़ में, जिस तरह इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर हैं, इनसे अगवा होते हैं। यहाँ पे चोरी चकारी करने वाले जो हैं पकड़े जाते हैं, जो एक खुफिया पोशीदा अमल होता है। एक एमएनए को लाजिश से अगवा किया जाता है, हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जब कैमरों की ज़रूरत पड़ती है तो कैमरे चोरी हो जाते हैं। ये अदालतें भी अच्छी तरह समझ रही हैं। आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि जब शहरियार अफरीदी साहब के केस में मैंने अदालत हाई कोर्ट से, बाबर सत्तार साहब की अदालत से इस्तदा की कि वो अपने बहन और भाई के कब्रों पे हाज़िरी के लिए इजाज़त तलब कर रहा है ताकि एक दिन कोर्ट वो आए हैं, तो फाजिल जज साहब की वो रिमार्क्स आपको नहीं भूलने चाहिए। उन्होंने कहा जी फिर अपने रिस्क पे जाएगा, यानी कि कोई गारंटी नहीं है पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों की आज़ाद फिरने की। कोई भी उठा सकता है किसी भी लम्हे, और ये लोग न दहशतगर्द हैं, न इनका ताल्लुक TTP से है, न किसी बलोच लिबरेशन आर्मी से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। तो लिहाजा हमें अब इन इदारों से भी बुरी, इन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन से भी बुरी ट्रीटमेंट दी जा रही है। शेख रशीद कई दफ़ा का वफाकी वज़ीर रहा है, आप लोग देख रहे हैं परवेज़ इलाही साहब के साथ क्या हो रहा है। ये अदालतें सब कुछ देख रही है, पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त लाकानूनियत है, ये चीना जब्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती, और ये अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये अदालतों की भी तौहीन है, कानून का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। नवाज शरीफ के हवाले से खबरें बताई जा रही है कि वो नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म है, तो क्या ये खबरें हकीकत है कि वाकई वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा, या मायूसी के लिए फैलाया जा रहा है कि लोग वोट के लिए ना निकले? हमने तो ये पढ़ा है, देखा है और सुना है कि अवाम लोगों को वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं वोट के ज़रिए से। अब
ये जो बयानिया डेवलप किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई और ताकतें हैं जो पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बनाती हैं, और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स जिसने आज से कुछ साल पहले वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया, वो खुद अब कौम को ये बताना चाहता है कि वोट कोई चीज़ नहीं है, जिन्होंने आपको बनाना है वो आपको बना लेते हैं। लेकिन अवाम पाकिस्तान इस दफ़ा तैयार कर चुके हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर तैयार कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में ना हम अपने वोट को हाईजैक होने देंगे, ना हम वोट की रिगिंग को होने देंगे। हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, ये तमाम लोग सुन लें। ये अभी अगर हम खामोश हैं तो सिर्फ मसलहत के तहत हैं कि खान साहब ने ये हुक्म किया था, लेकिन जब भी इलेक्शन आएंगे हमारी कोई खामोशी नहीं होगी। हम धड़ल्ले से बाहर निकलेंगे, किसी भी फिस्ताई हरकत को, वोट की रिगिंग को हम हर सूरत में रोकेंगे। सर, IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान सामने आया है कि हम पाकिस्तान से यही कह रहे हैं कि आप अमीरों के ऊपर टैक्स लगा दें, गरीब को रिलीफ दे दें, लेकिन पाकिस्तान में सर जब भी टैक्स लगते हैं गरीबों के ऊपर लगता है। सर यार वजह क्या है, आखिर आपको क्या नज़र आ रही है? देखिए, टैक्स चोर सब हैं, गरीब भी हैं, और जिनको आप गरीब कह रहे हैं, और अमीर भी हैं। 25 करोड़ की आबादी में टैक्स दहिंदगान की तादाद जो हैं, वो अगर आप मुआवजा करें यूनाइटेड किंगडम के साथ, जिसकी आबादी 6 करोड़ हैं, लेकिन उनका ये रेशो 80% है, हमारी रेशो जो है वो 3.5% है, तो शर्म का मकाम है। टैक्स सबको देने चाहिए, तो तब ही मुल्क में मईशत को संभाला दिया जा सकेगा। सर, अनवारुल हक काकल के जो मुबैना तौर पर एक तस्वीर वायरल हुई है कि ये पहली दफ़ा UN गए हैं, उधर सेल्फी ले रहे हैं, जिस पे पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। खैर, अगर सेल्फी ले रहे हैं, शौक हैं, उसका भी दिल करता होगा, लेने दें। सर, इस वक्त नवाज शरीफ जिनका एहतसाब करने की बात कर रहे हैं, उनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ PTI का भी बयानिया रहा है और अभी तक है। क्या इस हवाले से इस मामले में आप नवाज शरीफ का साथ देंगे और आप कहेंगे कि एहतसाब होना चाहिए? एहतसाब तो इसीलिए तो इमरान खान जो हैं गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट, ये अमेंडमेंट चैलेंज की थी। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में डाकुओं चोरों का एहतसाब हो, और यही इसका गुनाह है। ये इसीलिए तो आज जेल में पड़ा है कि वो कहते हैं कि आपने तो जी स्टेटस को चैलेंज किया हुआ है, आपने तो ताकतवरों को चैलेंज किया, आप तो गरीब आवाम की बात कर रहे हैं, एहतसाब की बात कर रहे हैं। अगर एहतसाब पे खान साहब का इतना वो रासिखुल अकीदा ना होते, इतने वो एम्फेटिक ना होते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ना जाते। आज उन ताकतवर हलकों को तो तकलीफ पहुंची है कि उनकी पिटीशन अलाउ हुई है और नेब अमेंडमेंट सेटिसाइड हुए हैं। दूसरी बात जो आपका सवाल है, किसी का भी एहतसाब हो बिला तफरीक, उसके लिए जो है चेयरमैन PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वक्त तैयार हैं। हम चाहते हैं मुल्क में बेरहमाना एहतसाब हो। जिन लोगों ने इस मुल्क का पैसा लूटा है, और जो लूटते हैं वो फिर बाहर जाते हैं, वो यहाँ पे जेलों में नहीं पड़े होते हैं, तो लिहाजा कोई एहतसाब होगा। अगर नवाज शरीफ साहब जिन लोगों की एहतसाब की बात कर रहे हैं, उन समेत सबकी एहतसाब की बात हम कर रहे हैं। आखिरी आपसे सवाल है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।